वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं कार्यक्रम क्या बात है। कनाडा में बसे भारतीय लोगों की अचीवमेंट्स की कहानी में आज बात करेंगे नवल बजाज की। नवल ने MBA, LLB और इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त की है। भारत में उन्होंने कई प्रतिष्ठित स्थानों में काम भी किया है और अब कनाडा में भी उन्होंने अपने लिए एक खास जगह बनाई है। हमारी रिपोर्टर रत्ना उनसे मिली और उनके नए रोल के बारे में बात की। उनका नया रोल है ICCC प्रेसिडेंट का। भारत छोड़ने के समय हर इंसान लाता है अपने साथ कुछ सपने, उम्मीदें और ख्वाहिशें, और इन सबको हकीकत में बदलने के लिए करता है कड़ी मेहनत। ऐसी ही कड़ी मेहनत करके कामयाबी पाई एक बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर और ICCC के प्रेसिडेंट नवल बजाज ने। चलो मेरे साथ आज बात करते हैं नवल बजाज से। नवल जी, आपकी प्रेसिडेंसी में ICCC की प्रायोरिटीज़ क्या है, मैंडेट क्या है, वो बताएं प्लीज़। ICCC का ट्विन मैंडेट है। उसमें वन ऑफ द थिंग इज हाउ वी प्रमोट द लोकल बिजनेसेस। मतलब जो इंडो कैनेडियन बिजनेसेस हैं, हाउ कैन वी प्रमोट देम, हाउ कैन वी हेल्प देम कि वो अपने बिजनेस में प्रोग्रेस करें, लोकली भी और ग्लोबली, इंटरनेशनली भी। और दूसरा है कि कनाडा इंडिया कॉरिडोर, that how can we help Indo-Canadian businesses, international businesses to have their business in Canada and as well as in India. When we speak about tripling our trade, जो Prime Minister Stephen Harper बोलते हैं, if you ask me, I think the trade can be easily done in the next couple of years 10 times. मैं हरदम बोलता हूँ कि खाली एक डायमंड बिजनेस को we remove the hurdles of the diamond business, both the countries work on removing the hurdles on the diamond business, then the trade can be tripled up right away. So the business potential in both the countries is huge. We are now moving to the specific sector. मैं जब इस जनवरी में जो मिशन ले गया था, that was the largest trade mission in the history of Canada taken to India. We had more than 150 small businesses with us. We went to 6 cities. In 16 days we had close to 40 events out there. After they came back, उनको इंडिया से बिजनेसेस की इतनी ऑफर्स आ रही है. Not only that, lot of Indian businesses यहाँ पर आके अपना इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, अपने आप को एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, was able to brand Canada strongly. इस साल हम फोकस करने वाले हैं. We are going again in a trade mission. We are taking again a trade mission in January to India. The trade mission is going to be focused on few sectors. One of them is is circling around the food, which speaks about the agriculture, the food security, the food processing, because there is a huge potential in India on the food processing side, on the food security side. Canada-India corridor is, it's a corridor which we still, I don't think any of us can imagine also. Neither us, neither our business people, neither politicians can think. And that's where we thought, let's put a project together which is known as Unlocking Full Potential of Canada-India Partnership. Under that project, what we are trying to do is कि हम कनाडा के सारे जो इम्पोर्टेंट शहर्स है, ईस्ट वेस्ट और इम्पोर्टेंट सिटीज़ है, वो कैलगरी हो गई, मॉन्ट्रियल हो गया, क्यूबेक, टोरंटो, Saskatchewan, Regina, Winnipeg, Edmonton. We are going to every place and we are doing the round tables, trying to meet the professionals, trying to meet the entrepreneurs, trying to bring the experts and see what they think, what are the potential Canada-India has. The same thing we did when we were in India with 3 cities, when in January. We are going to continue doing that. We are back in India in the next 3-4 months. वापस से हम वो राउंड टेबल करेंगे. We are going to come with a report which shows about there are so many potential both the countries has. This report is going to be useful at the government level, at the industry level, at the entrepreneurs level, at an individual level. आपने जैसे बात की बिजनेस इन प्रमोशन के बारे में, इंडो कनाडा दोनों देशों को मिलाने के बारे में, और हर्डल्स की भी बात की. क्या हर्डल्स आते हैं और क्या इंडिया की जो इकोनॉमी है आज, उसका इम्पैक्ट कनाडा के ऊपर, उस पर आप बात कर सकते हैं? बहुत सारे लोगों को बिजनेस में पोटेंशियल्स में यही पता नहीं है हाउ मच इंडिया हैज़ टू ऑफर.
और सेम कैनेडियन बिजनेसेस को कि ये नहीं है कि कितना इंडिया से कर सकते हैं। जैसे हम अभी जब बैंगलोर गए थे, वी आर लुकिंग एट इट, एरोस्पेस इंडस्ट्री कैन बी डन लॉट बिटवीन कनाडा इंडिया। सडन सेक्टर्स तो सबसे पहली चीज वो है। दूसरी ये है कि हाउ टू डू बिजनेस इन इंडिया। देखो, अपने सब जानते हैं कि डूइंग बिजनेस इन इंडिया जितना सिंपल अपने सोचते हैं उतना नहीं है। बिग पोटेंशियल, एक बार आप बिजनेस वहां पर स्टार्ट कर दो, देन देयर इज नो रिवर्स टर्न, नॉट लुकिंग बैक इनटू द रियर मिरर एट ऑल। इंडिया में आज रुपया गिर रहा है और उसकी इकॉनमी कनाडा के ऊपर क्या इम्पैक्ट लाएगी? इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी है कि टू हैव ए स्टेबल गवर्नमेंट। व्हेन ए स्टेबल मीन्स टुडे गवर्नमेंट इज आल्सो स्टेबल, बट स्टेबल मेजॉरिटी गवर्नमेंट। जो डिसीजंस लिए नहीं जा रहे वहाँ पर, उसके हिसाब से बिजनेस में काफ़ी इफेक्ट हो रहा है। आज इंडिया की इकोनॉमी, जैसे कनाडा की इकोनॉमी है, इज डिपेंड्स अ लॉट ऑन स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। उनके लिए बहुत सारी पॉलिसीज बननी जरूरी होती है, और वो सारी चीज़ें होने से एक स्टेबल इकोनॉमी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पर मेरा ऐसा मानना है, इट्स जस्ट ए मैटर ऑफ टाइम। थिंग्स आर गोइंग टू रिवर्स अप। टाइम इज आई डोंट हैव अ टाइम कि कब रुपया वापस से होगा, पर मेरे हिसाब से विद इन सम टाइम यू विल सी द रिवर्स साइड हैपनिंग ऑन इट। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी मुलाकात नवल बजाज के साथ पसंद आई होगी। क्या बात है टीवी के लिए मैं रत्ना पर्दा। भाई क्या बात है, इतनी उच्च शिक्षा, इतने हाई पोजीशंस पे काम कोई ही कर सकता है, लेकिन आप और हम कोशिश ज़रूर करते हैं सीखने की। तो चलिए अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और आप ये कोशिश जारी रखिए। मिलते हैं थोड़ी ही देर में। हाँ, अगर हम देखें तो ये 2 बाल्टियाँ क्या लगती हैं। इन्हीं में लोग पानी लाते थे, घर तक पहुंचाते थे, पीते थे, नहाते थे और इसी से सारा काम करते थे। पर पानी में लाना